everyone, welcome back to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. This side Shashi. I'm going to explain today the worksheet number 47, subject science and class 9. And today we are going to take the revision of chapter 9, chapter 5. Fine. So first point is that we are discussing about here cell revision, giving revision of cells and their parts and all. Cell is the basic function and the structural unit of the life. Everybody knows that because all the functions and structures of the living being are performed by the cell only. ठीक है. सेकेंड, ऑन द बेसिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप्स. लिविंग बीइंग के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स जो है आपके वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट आपका होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकेंड इज योर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. यूनि मीन्स सिंगल, एंड फॉर एग्जाम्पल अमीबा, बैक्टीरिया एंड paramecium, etc. Now second is your multicellular organism. They are made definitely multicellular, so many cells are there. For example, plants, animal, fungi, many cells groups together performs a different activity, so that's known as a multicellular organism. Here you can see the process of breaking the, so many cells when come together in a group, it forms a tissue, and the group of tissues forms an organ, and group of organs forms a system. So this is organ system, and the group, with the help of the organ system, there the human beings are there, or animal, or so these are the bifurcation. So on the basis of a basic structure, cells are two type. Basic rule के हिसाब से जो आपके structure है cell के, वो दो type के होते हैं. ये सब आपने पढ़ा हुआ है, just a recall and revision is going on. Fine. Prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell is, these are the simple cell which have a nuclear membrane not there, which nuclear membrane is absent, such as bacteria. इस सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होता है. जबकि इफ यू लुक टू द eukaryotic cell, these are a complex cell and having a membrane bond, cell organelle and nucleus both. Fine. So ये differentiation भी हो गया prokaryotic cells और eukaryotic cells का. Now effect of a concentration of solution on a cell on the basic of a concentrated water solution of a three types के होते हैं. Hypotonic solution, isotonic solution and hypertonic solution. तीन तरह के आपके solution होते हैं. Hypotonic solution में क्या होता है, concentration पे base पे, याद है आपके cell का concentration और basics of the concentration of water solution. तो hypotonic solution that have more water than cell, ऐसे सोल्यूशन जिसमें मोर वाटर होता है सेल की अपेक्षा. इन दैट केस द सेल स्वेल अप एंड इंक्रीज द साइज ड्यू टू एंडोसोमिक्स. एंडोस्मोसिस के केस के कारण वो क्या होता है, वो स्वेल अप कर जाता है. ठीक है. सेकेंड इज योर आइसोटोनिक सोल्यूशन. द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सोल्यूशन एंड सेल इज सेम. यहाँ दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता है, सो नो चेंज अकर्स इन द शेप. Hypertonic solution. Hypertonic solution is that they have a lesser water than the cell. So what happens? Cell shrinks. And what happens? It's decrease the size due to the exomosis. So endomosis or exomosis is also, you can understand the difference between these two with the help of this. Okay? Now let's move toward, every cells have at least three features. क्या होता है? Plasma membrane, nucleus and cytoplasm. प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तीन इसमें फीचर्स होते हैं हर सेल के. तो व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन और कंट्रोलर ऑफ द सेल, एंड इट इज कंट्रोल द डायरेक्ट्स द सेल फंक्शन. ठीक है. द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑफ द क्रोमैटिक इज कॉल्ड जीन्स. दिस इज द फंक्शनल सेगमेंट एंड क्रोमोसोम्स कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो डीएनए के थ्रू, जीन्स के थ्रू आपके जो है पेरेंट्स के जो कुछ फंक्शंस होते, फीचर्स होते हैं जो कि कैरी आउट होता है टू द बेबी. ओके. सो नाउ नेक्स्ट इज दैट ER. So what is ER? ER is two types of endoplasmic reticulum. Also serve a channel for the ER is of two types of endoplasmic reticulum, also serve a channel
for the transport of material between various regions and the cytoplasm or between the cytoplasm and nucleus. ठीक है, तो ER का फुल ये है आपका, इसको ER का फुल फॉर्म क्या है, एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम. ठीक है, so you can see that there are two types of ER, rough and smooth ER. So rough, whenever any types of protein is required by the cell, these informations are carried out by RNA to ribosomes, which manufacture the required protein of the basis of such information for the cell. हमने पढ़ा था रफ जो है एंडोप्लाज्म होता है जो रेक्टिकुलम, व्हेनेवर एनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है सेल को, तो ये इन्फॉर्मेशन कैरी करता है आरएनए को और मैन्युफैक्चर और रिक्वायर्ड, जिससे कि रिक्वायर्ड प्रोटीन मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सेल. ठीक है, ये प्रोटीन जो है वेरियस प्लेसेस पे सेल बाय आरईआर के थ्रू भेजा जाता है. स्मूथ क्या होता है, एससीआर प्रोड्यूस द फैट, जब फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स को एससीआर प्रोड्यूस करता है. एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जिनका यूज़ बहुत बड़ा रोल है किसके लिए, सेल फंक्शन में. ठीक है, नाउ वी कम टू गोल्गी एपरेटस. सो व्हाट इज गोल्गी एपरेटस? Body and apparatus. In Golgi body, materials like protein, lipid etc. are stored, modified, package. इसमें प्रोटीन लिपिड स्टोर होते हैं, मॉडिफाई होते हैं एंड डिस्पैच होते हैं आउट टू द सेल थ्रू द गोल्गी एपरेटस एट पर द नीड ऑफ द सेल. जैसे नीड रिक्वायर्ड होता है आपके प्रोटीन का, लिपिड का, उस हिसाब से इसके थ्रू जो है नीड ऑफ द सेल पूरा होता है. नाउ लाइसोसोम्स क्या है, दिस आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम. ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है किसका, सेल का. लाइसोसोम बर्स्ट एंड डाइजेस्ट एंजाइम्स, ये बर्स्ट कर जाते हैं, डाइजेस्ट एंजाइम्स कर जाते हैं और अपने ही सेल को दे डाइजेस्ट, इसलिए उनको सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट देयर इज अ वॉक्यूल and in plant cell vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. Many substances such as amino acid, various organic acid, some proteins, sugar etc. are shorted in it. इसके अंदर shorted होता है, किसके अंदर, वैक्यूले के अंदर. What is a mitochondria? तो ये हमारा 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, सब पढ़ा हुआ है, जस्ट वी आर टेकिंग द रिवीजन. लाइसोसोम, सुसाइड बैग, हमने राइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है. इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. वाई इट इज़ प्रोवाइड द एनर्जी, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को. एंड वॉट प्रोवाइड विद द हेल्प ऑफ प्रोड्यूसिंग ATPs थ्रू दे आर नोन एज अ पावर हाउस, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. फिर आता है आपका प्लास्टिड्स. इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन्स बाउंड होता है सेल ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल. ये प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होता है. सो ये इसमें 2 प्लास्टिड होते हैं आपको, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट. फाइन. और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और इसी के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है. और फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे आपका होने का केमिकल फॉर्मूला पूरा मेंशन है. The process of being a photosynthesis, carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll when react it produce energy and release oxygen gas. ठीक है, तो ये रिवीजन हो गया. इससे बेस पे कुछ क्वेश्चंस है. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट what change will occurs in raisins, means किशमिश में, and the RBC when they are placed inside the hypotonic solution, and why. क्या होता है अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम वी पुट करते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, व्हेन वी पुट इन द हाइपोटोनिक सोल्यूशन द साइज ऑफ द रेजिन इंक्रीजेस, वो जो है स्वेल अप कर जाता है. व्हाई, बिकॉज सोल्यूशन दैट हैव अ मोर वाटर दैट ऑफ द सेल, और अंदर सेल से अपेक्षा बाहर जो है वो वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, एंड इसीलिए सेल स्वेल अप कर जाता है, इंक्रीज द साइज ड्यू टू द एंडोमोसिस. फाइन. नेक्स्ट इज योर डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ पैक्रियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. हमने इसे यहाँ पे देखा है और पीछे बहुत सारे पहले भी डिटेल में भी हमने एक्सप्लेन किया था. यू कैन गेट द डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम हियर ऑल्सो. फाइन. Now next question is that write the full form of DNA and RNA with the where is the DNA found in the cell. So DNA और RNA आपका है
और ये कहाँ पाया जाता है, तो हमने अभी एक्सप्लेन किया था, जीन से और न्यूक्लियस के अंदर ये होता है। एंड द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमेटिक कॉल्ड जीन्स कहते हैं। और ठीक है, तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? डीएनए हो गया आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या हो गया? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सो दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ। देखो, प्लांट डायग्राम और एनिमल डायग्राम हमने प्रीवियसली भी बहुत अच्छे से हमने किया था। इफ़ यू लुक एट टू द प्रीवियस वर्कशीट्स एंड प्रीवियस you can find, and the NCERT also well labeled diagram is there, so you can see the well labeled diagram of plants and animal from your NCERT books also. Now the last question is that why lysosomes and called suicidal bag? अभी हमने पढ़ा है लाइसोसोम को suicidal bag क्यों कहते हैं, क्योंकि these are the waste disposal system of the cell. Lysosomes may burst and digest the enzymes. It will sometimes start digesting their own cell, thus they are called the suicide bags. तो you have the example, और हमने सेम क्वेश्चन पिछले वर्कशीट्स में भी जो हुए थे हमने उसमें किया था. Okay, so this is all about your this worksheet. Hope you have understood. Keep watching and keep sharing. Thank you everyone.